Guys, so how was your day? How are the festive vibes, guys? Enjoying, all set for Ganesh Puja. We'll be having full on 10 days fun in this Ganesh Utsav in Mumbai. It is celebrated on a wide scale. We just enjoy it in our society. Also, there is going to be Ganpati, and we will have lots of fun. There will be lots of games and everything. So how are you going to celebrate, guys? Are you having Ganesh at your home, or how are the preparations going on? Hi Pratima. Okay, so let's start today's live. Today we are going to do a very interesting DIY. It will be used in all the upcoming festivals. You can even gift it to your friends while you visit, even for Ganpati and everything. So I have chosen. Do you want to make a guess what I have chosen? Okay, so I will only tell you. It is an incense stick holder, and we are going to make it with clay. And you'll see that it will be an awesome thing to gift, and it's very easy. You can make it quickly without having too much of material. So without wasting further time, let's get started. And yeah, I wanted to show you this. Can you see this Ganpati, guys? This is done by my daughter, and she has uploaded full this tutorial on her channel. Her channel is Fun with Tavisha, Life of Tavisha, and she has created one more DIY, that is of decoupage art on a bottle. So both the videos are uploaded on her channel. If you want, then I'll just show you that also. See this one. So it's like me and my daughter both are into art DIYs, and you can see that our home is like all the time this table will be I'll show you one glimpse that how our table is. See, like this, all the colors and everything will be lying. You can see here also she is doing some artwork. So like this, she has her different table and I have my different table, and we will be like doing our artwork. So that was behind the scenes little glimpse. Hi Savita. So this is the bottle that she created, and it's up on her channel. I'll leave her link in the bio. So let's get started, guys, without wasting much time. This one, it's a nail paint, old nail polish bottle. I have just washed it. So this is a Favicryls molded, guys, which is used for creating mural, 3D art, decor, and this is the thing which I love from Favicryl, because we can create lots and lots of things from this, and it is only 20 bucks, and with this we can create lots of things. So what I do is mostly I work with this. So I have got this bigger pack. It is a 800-gram pack, and it is of 250. So I have ordered it online from Amazon, and I use it. It has like this lots of this molded and resins. Hi Purvi. So we will be using this today to make our incense stick holder. So for using this, many a times, if you have followed me, my channel or my lives, you must be knowing that how we have to mix this. So it has to be like half of this hardener and half of this resin. So both of them have to be like in equal proportion. Like this much is this, then this much only the other part also. This is little sticky because of the weather, so you have to work with our talcum powder.
Okay, first I am removing it, taking a little bit talcum powder in hand. And with the help of this cutter, I'll just take it out. Okay. And the main part with this clay is it dries within 30 to 35 minutes, so we have to be little quick, or else just mix like this small proportion. Don't mix the full clay at one go, but mix it part by part so that it doesn't dry. मतलब वो हार्ड हो जाएगी, अगर हमने उससे जल्दी जल्दी काम नहीं करा तो it will become hard. And now we have to mix it thoroughly. Hi Gayatri. I'm just mixing it, और वो थोड़ा सा स्टिक होने लगा है तो I will just apply a little bit of clay. अरे sorry, not clay, little bit of talcum powder. So you will be needing in this pearl colors which are having a metallic look, or which are having this shiny shimmer colors, all metallic sparkling colors. So whichever you want. अगर आपको थोड़ा सा like antique look चाहिए तो you can go for metallic ones, and अगर आपको थोड़ा सा shiny glittery look चाहिए तो you can go for sparkling colors. So it's up to you which one you want to use. But like I like more of the sparkling ones because उनमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है, तो वो फेस्टिवल के वाइब्स के हिसाब से अच्छा लगता है. Okay, so now what you have to do is just create a roll which we will be wrapping around this. Okay, first we have to just take your any brush, उसके ऊपर भी थोड़ा talcum powder लगा दो और उसको like roll करना है हमें clay को. And keep some like this poly bag or something below because it sticks. और वो एक बार stick हो जाता है तो फिर it is like नहीं निकलता है. That's why keep like this some surface. Poly bag रख लो, या तो फिर आपके पास कोई OHP sheet होगी या some plastic thing which is like very smooth and plain, and then just roll this dough. Okay, let's see whether it is fixing fully or not. Still we need to roll it, so I'll roll it further. थोड़ा सा और हमें रोल करना है so that it fixes, वो पूरा हमें कवर करना है उसका पोर्शन. इसमें हम बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं. आई एम शोइंग यू वन डिज़ाइन टुडे. मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द डिज़ाइंस. इट्स अप टू अवर क्रिएटिविटी, अवर इमेजिनेशन कि हम क्या क्या बना सकते हैं. क्ले इज सच अ थिंग. Hi Nandini. So like this I have wrapped it fully on my this nail paint, and I'll just cut the excess part. You can cut it with the scissor also or cutter also, whichever is convenient for you. Okay, and just उसको पूरा अच्छे से मर्ज कर दो एक दूसरे के साथ. That we have to like be little careful, और उससे हमें मिक्स करना. मर्जिंग के लिए we will be using talcum only. Okay, तो ऐसे talcum लेकर and just join it.
और ये बहुत आसानी से मर्ज हो जाता है. यू गाइज कैन सी. हाय लवली, थैंक यू. So guys, this will be a best gift for your loved ones or relatives or friends. आपको चाहिए कि आप उनके घर पे गणेशा विजिट करने जाएं and you want to, apart from sweets and other gifts, if you want to gift something handmade and something useful, तो ये बहुत फटाफट बन जाएगा and it will look very nice because ये सारे festival seasons में they can use it. And then यहाँ से भी इसे एक्स्ट्रा जो भी पोर्शन है that we will cut. Okay, and just cover this part. So this is a very nice DIY gift. आपको गिफ्ट करना है तो ऐसा फटाफट बन जाएगा. नहीं गिफ्ट करना है, अपने घर के लिए बनाना है, तो देन ऑल्सो इट इज़ अ नाइस DIY डेकोर. किसको नहीं पसंद कि उनकी अगरबत्तियों को एक अच्छा सा स्टैंड मिले एंड वो भी अगर हैंडमेड हो. सी, हमें मार्केट से तो बहुत कुछ मिल सकता है. मार्केट इज़ लाइक वहाँ पे हमें बहुत सारा एकदम अच्छे से अच्छी चीज़ मिल सकती है. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ मेकिंग इट योर सेल्फ इज the feeling that get attached while making it. वो जो feeling आती है ना हाथों से बनाने की, वो मतलब मार्केट से ला के यूज़ करने में नहीं आती है. That's what I feel. So I have just made a finished look for this. Okay. Hi everyone, whoever is joining in. And now what you have to do is, with the help of scissor, make cuts. कैसे cuts लगाने हैं? So just hold it like this and then ऐसे. So what you will be able to see like this, एक पत्ती जैसे उसमें से उभर के आ रहा है. Can you see how the texture is coming? So this is very easy technique and the look is like wow, it will look very nice. So be little patient while you cut, कि आप उसे ज़्यादा और क्या बोलते हैं पतला ना कट कर दो कि वो निकल के बाहर गिर जाए. Just a little bit you need to cut. Okay, so you have to be little bit careful while you cut. That is the only thing you have to keep in mind. Otherwise it is like easy thing to do. I hope you are understanding the process. It's not tough actually. It's easy. Okay, so we have almost done with the below layer and you can see how has the leaves come. थोड़ा सा पास से दिखाओ. Yeah, can you see how have the leaves come? Okay. Now अभी ये जो दो लीफ है उसके बीच में we will be giving cut. Okay. So same way जैसे हमने ऊपर दिया था वैसे ही देना है हमें बीच में से. तो that will give it a flowery look. And थोड़ा सा पेशेंस रखना है and the result will be like nice, awesome. And इसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है. सो आपने अगर सोचा है कि आपको ये गिफ्ट करना है तो इट इज़ लाइक फास्टर DIY. इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा. See, the second layer is also done. दिख रहा है and how it is looking. Okay, so that way you have to like keep on making till top. और अगर आपको इतना ही चाहिए तो यहाँ पे आप कुछ डिज़ाइन भी डाल सकते हो. It depends on you कि आपको इसे fully कवर करना है या partially कवर करना है.
देखो ये मैंने थोड़ा सा तेज़ ज़ोर लगा दिया तो इट हैज़ कम आउट, बट अभी ये गीला है तो आई कैन सिंपली स्टिक इट बैक. सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट while you cut this. Okay. देखो कैसे मस्त डिज़ाइन बनती जा रही है हमारी. होप यू आर गेटिंग द प्रोसेस गाइस. इट्स नॉट एट ऑल टफ. सो इसे पूरा हमें रिपीट करते रहना है टिल वी रीच टॉप, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ऊपर तक नहीं करना है तो यू कैन स्टॉप इन द मिडल एंड डू सम अदर डिज़ाइन ऑन द अदर पार्ट. बट आई वॉन्ट टू कैरी इट टिल द टॉप. देखो मेरे यहाँ से एक निकल गया है, सो आई विल जस्ट स्टिक इट. तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है पर डोंट वरी, ये क्ले है ना तो दैट इज जब तक ये सूखा नहीं है तब तक वी कैन प्ले विद इट. Okay, so like I am kind of done. Now just keep it down. और ये जो मेरी सब थोड़ी थोड़ी ऊपर चली गई है उनको भी मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हाथ में होल्ड किया था ना एक्चुअली. हाँ राइट, वी शुड नॉट होल्ड इट इन हैंड. ये देखो मैंने हैंड से होल्ड किया तो वो थोड़ा सा ऐसे प्रेस हो गया है और ऊपर का टेक्सचर अलग है एंड नीचे थोड़े दब गए हैं. व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कीप इट एंड फिर से उसे कट कर दो. बट फिर वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है. सो आई थिंक अभी मैं वैसे ही रहने देती हूँ. लेट डाउनवर्ड्स बी लाइक दैट ओनली, कि वो थोड़ा सा दबा हुआ है एंड ऊपर ज़्यादा टेक्सचर है. बट वी विल नाउ डेकोरेट द बिलो पार्ट, क्योंकि अभी वहाँ पे इतना टेक्सचर नहीं रहा है. तो आई विल जस्ट टेक दिस क्ले एंड रैप अराउंड इट, जैसे कि वो फिनिशिंग अच्छी ही दिखे उसकी. So like this I have wrapped this one full circle around it, और उसको एक बेस भी मिल जाएगा हमारे स्टैंड को. ओके, एंड यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा वो ऐसे खाली खाली लग रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, वहाँ पर हम डिज़ाइन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ cutter. So what I'll do, I'll just make like this cuts in it. Okay, so you can see how it is looking. थोड़ा सा डिज़ाइन वाला अच्छा लगता है. हाय निवेदिता. नाउ एक्चुअली इसको कलर करने से पहले लेट इट ड्राई, लाइक थोड़ा सा 2-3 घंटे से छोड़ देना, आराम से ड्राई हो जाए, देन यू कलर इट. तो ये जो इसके सारे हमारे टेक्सचर आए हैं दैट वोंट गेट क्या बोलते हैं, वो खराब ना हो जाए. जस्ट स्टिक इट नाइसली. And I want to decorate, I want a texture on this layer also. ये जो अभी हमने यहाँ पर एक रिंग लगाई है उस पर भी मुझे टेक्सचर चाहिए. So I will be going to use a refill guys for this. Just give me a second, let me get it ready.
texture on this also with the help of this refill. So what I will be doing is, यहाँ पे मैं ऐसे रिफिल डाल के और सर्कल्स बना रही हूँ. Can you see? I'll just take it near the camera. So like this impressions we will be making to give it a designer look. And whenever I work with this clay, I feel so nice and so therapeutic because ये उतना soft होता है और इसको हम कैसे भी mold कर सकते हैं. So it can be given any shape of our choice, which makes it a versatile product. You remember I have taught so many things with this molded clay. So this is the texture that I have given. और मुझे अभी ये जो नीचे जो यहाँ की पत्तियाँ ऊपर हो गई है तो उनको भी वो बहुत प्लेन लग रही है. सो व्हाट आई वांट टू डू, वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा लाइनिंग्स दिखाने हैं. सो आई विल मेक द लाइनिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस कटर. ओके, तो वो अच्छे लगेंगे. The more texture it has, the more better it will look. So you can give textures with the help of tools at home. जैसे कि रिफिल हो गया, ये कटर हो गया. कटर से भी आप अलग अलग शेप दे सकते हो. स्लांटिंग, स्टैंडिंग, वेवी. आई होप आई एम अंडर द कैमरा गाइस, क्योंकि वो मैं करते करते कहाँ अपनी दुनिया में चली जाती है ना. आई डोंट रियलाइज कि मैं कैमरा के नीचे आपको दिखा रही हूँ. इट हैज सच अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट. आप जब भी इसे बनाओ तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि हाउ डू यू फील व्हेन यू रियली मेक इट. सी हाउ द टेक्सचर हैज कम. दिख रहा है? अभी ये सूख जाएगा व्हेन इट ड्राइज. हाय साक्षी, हाय जैना. ओके, सो ओह देखो ऊपर वहाँ काम करने गए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर का पोर्शन का क्ले दिखने लगा है. अरे क्ले नहीं, वो नीचे का उसका ग्लास दिखने लगा है. सो आई पेस्ट अ लिटिल मोर क्ले हियर. या तो फिर वो नीचे वाला ही आप ऊपर ले लो, बट आई वॉन्ट इट ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे देते हैं. तो लाइक दिस आई एम प्लेसिंग अ सर्कल ऑन टॉप ऑफ इट. ओके, और इसमें भी आप अपना रिफिल से है या फिर आप इससे आगे से दोगे तो इसमें गड्ढे बनेंगे और ऐसे पीछे से दोगे तो सर्कल्स बनेंगे. सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या देना है. ओके, सो मैं यही दे रही हूँ जो मैंने नीचे दिए. Whoever you will be gifting, they will be like so happy to receive this handmade agarbatti stand. And ये अभी सिर्फ क्ले ही दिख रहा है ना, that's why it is looking कितना अच्छा फिनिशिंग नहीं है या whatever. Once it gets colored, फिर इसको देखना, you'll know the difference. जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है. जैसे ही कलर अप्लाई करते हैं क्ले के ऊपर, होल लुक चेंजेस. जैसे वो मेकओवर करते हैं ना हम लोग, लाइक दैट. अभी ये मेरा एक अगरबत्ती स्टैंड रेडी हो गया. जस्ट फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्लैक कलर. आई पेंट दिस होल
with black, and then after that I'll be applying the कौन से मैं दिखाती हूँ कौन से कलर्स अप्लाई करूँगी. ओके, फर्स्ट लाइट, क्योंकि ब्लैक को भी थोड़ा सा हमें ड्राई होने देना होगा, दैट्स वाई आई जस्ट अप्लाई द ब्लैक कलर. एंड जस्ट बी केयरफुल कि उसमें से बीच बीच में से सब कुछ हम कवर करें. लाइक क्ले वाला पोर्शन वाइट वाइट ऐसे नहीं दिखना चाहिए. एवरीथिंग वी हैव टू कलर. सो कलर इट स्लोली, जेंटली एंड फिलिंग एवरीथिंग. अगर आपका एक बार ड्राई हो जाएगा ना तो फिर आपको जेंटली करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इट विल बी ऑलरेडी हैविंग अ शेप. मुझे वो जेंटली करना पड़ रहा है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मैस विद इट्स शेप. अभी वो बहुत गीला है. पर क्योंकि मुझे आपको उसको कलर करना कैसे है वो भी दिखाना है, दैट्स वाई आई एम शोइंग यू राइट नाउ. डोंट टच इट, ऐसे ही नीचे रख के और कर लो, क्योंकि हमें वी हैव टू कवर ऑल द साइड्स. एंड डू द स्ट्रोक्स फ्रॉम डाउन टू अप. इसमें ऐसे ऐसे से थोड़ा सा ब्रश अंदर डालकर और वो जो उसके अंदर वाली लेयर्स है वहाँ भी फिल करना है. एंड यहाँ नीचे की रिंग पे भी अच्छे से लगाना है पूरा ब्लैक कलर. फुल्ली वी हैव टू कवर दिस एवरीथिंग विद ब्लैक फर्स्ट. ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कलर हुआ अभी, ब्लैक, इट्स नॉट लुकिंग दैट नाइस, व्हाट इज दिस. ऐसा कोई अगरबत्ती स्टैंड होता होगा क्या, इतना काला काला सा, इट्स लुकिंग सो नॉट गुड. पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. असली लुक तो अब आएगा जब ये ब्लैक सूखेगा और इसके ऊपर हम जो कोट करेंगे. ओके, सो लेट इट ड्राई. तब तक आई विल शो यू द कलर्स गाइज. ओके, कि हमें कौन से कलर्स यूज़ करने हैं. यहाँ बीच में भी भर दो सो दैट नोबडी नोस कि हमने अंदर क्या यूज़ किया है. ये सिर्फ हमारा सीक्रेट है कि हमने अंदर क्या यूज़ किया है. वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्ल कलर्स. ओके, सो दीज हैज़ वेरियस शेड्स लाइक दिस. ये देखो, ये वाला है ऐसा शाइनी ब्लू. तो विच वन आई विल बी यूजिंग, लेट मी सी मुझे कौन सा पसंद है. आई लाइक दिस वन ऑल्सो. ये टील ब्लू जैसा शेड है, इस पर लिखा है पर्ल ग्रीन. ओके, एंड द अदर वन दैट आई लाइक इज this one. ये है pearl turquoise blue. Can you see? Pearl turquoise blue. So these or this, या फिर अगर हम लोग as per the क्या बोलते हैं festive vibes के साथ जाएं तो we can use this sparkling pearl emerald green, या फिर ये स्पार्कलिंग पर्ल गोल्डन ग्रीन.
ये मतलब कुछ हमें ऐसा लीफी लुक चाहिए तो उसके लिए है। और अगर हमें मेटेलिक लुक चाहिए तो फॉर दैट वी हैव दिस मेटेलिक कलर्स, पॉल मेटेलिक कलर्स। ओके, तो इसमें गोल्डन है, सिल्वर है, ये कौन सा है, रस्ट है, एंड दिस वन इज कॉपर। तो ये वाले भी हम लोग यूज कर सकते हैं उसके साथ। गोल्डन भी बहुत अच्छा लगता है गाइस। शुड वी ट्राई गोल्डन या फिर कलरफुल? व्हाट डू यू सजेस्ट? कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा? जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। Which one will look better, guys? This और कौन सा मैंने बोला? गोल्डन, या दिस वन। जस्ट लेट मी नो, अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करते हो तो आई विल यूज दैट, और एल्स आई विल यूज जो मुझे यूज करना है। ओके, सो ये थोड़ा ड्राई हो गया क्या? लेट्स सी। ब्लैक नहीं, अभी ड्राई नहीं हुआ है, सो लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। और तब तक व्हाट शैल वी डू? हाँ, तब तक मैं आपको एक DIY बताती हूँ। सी, दिस मच क्ले इज लेफ्ट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस क्ले का आई विल बी मेकिंग वन बीड, जो हम कभी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन लाइक दिस बीड इन द मार्केट। तो इसमें बीच में ऐसे टूथपिक लगा के आप होल कर दो। कलरफुल, अच्छा, ओके। आर्टिस्ट क्रिया's creation, okay Kriya, so we will make it colorful then. Thank you for the inputs. So this way we will be making this use of leftover clay. I am the one who doesn't like wastage, so अगर मैं वो clay ऐसे ही छोड़ दूंगी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, because once the clay dries, as I told you, it takes that shape. तो ये हमारा एक बीड बना है। इसका शेप आप चेंज कर सकते हो। आई हैव जस्ट गिवन इट एन ओवल शेप। आप इसको जैसे, इफ़ यू हैव सीन माई राखी का DIY, तो मैंने वहाँ पे उसको स्क्वायर लुक भी दिया है, वो उसको, एंड जस्ट लेट इट ड्राई। इसको ऐसे छोड़ दो। वंस इट ड्राइज, इसके ऊपर भी यू डू द ब्लैक कलर एंड देन अप्लाई दिस विच एवर कलर का बीड आपको चाहिए, दैट कलर यू अप्लाई and it looks very nice. So this is one tip that I have given you, how you can use your leftover clay. Okay, now let's start. अभी तक थोड़ा ड्राई हो जाना चाहिए। It's not drying fast क्योंकि वो clay भी हमारा गीला है। So let me use a dryer. Okay, so I have dried it. Now let's do this color, and we will be using dry stroke technique. Okay, brush dry technique, जिसमें कि हम लोग सिर्फ एकदम हल्का हल्का सा लगाते हैं कलर को। ओके, आई एम नॉट टचिंग इट क्योंकि वो क्ले मेरा सूखा नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि वो सूख जाएगा, देन ओनली यू डू ऑल दिस प्रोसेस, क्योंकि अदरवाइज वो सूखता नहीं है तो उसका शेप चेंज होने का ये रहता है, डर रहता है। सो दिस वे आई एम अप्लाइंग this
color and giving it a colorful look. थोड़ा सा ऊपर I will apply golden, okay? And यहाँ नीचे I am using this turquoise blue. एंड एकदम हल्का हल्का सा आपको सिर्फ ब्रश को टच करना है, नॉट टू मच. हमें उसका नीचे का ब्लैक भी दिखते रहने देना है. ओके, आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट बिकॉज उसका शेप चेंज हो जा रहा है, बट आई विल शो यू लाइक दिस. ये देखो, कैन यू सी हाउ वी हैव टू कलर. पूरा नहीं कवर करना है हमें. सो लाइक दिस. Just a little all the places. ठीक है, ये मेरा हो गया. अभी मुझे नीचे की तरफ आई वॉन्ट टू गिव ग्रीन. एंड जो सबसे नीचे हमने लगाया था और सबसे नीचे और सबसे ऊपर वी विल बी अप्लाइंग गोल्डन. ओके, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस ग्रीन. कौन सा ग्रीन बोला था मैंने आपको? पर्ल ग्रीन. ओके, वो जो नीचे पता है मैंने लाइनिंग्स दी थी, सो दैट पोर्शन मुझे उसे पर्ल ग्रीन करना है. सो इट विल हैव लाइक टू टेक्सचर्स, अरे टू कलर्स, पर्ल ग्रीन एंड दैट ब्लू. I will turn it with this brush only. Don't want to touch it. एंड यहाँ भी एकदम हल्का हल्का सा आपको टच करना है. डोंट मेक इट फुल्ली कवर. वेरी लाइटली वी हैव टू डू दिस ड्राई ब्रश टेक्निक. मैं आपको उसका उठा के दिखाऊंगी कि हाउ इट विल लुक फाइनली. ओके, तो ये मैंने नीचे ये वाला ग्रीन कर दिया है. एंड नाउ एट द बॉटमेस्ट एंड टॉपेस्ट, मतलब लोएस्ट एंड टॉपेस्ट पार्ट, आई विल बी डूइंग आवर गोल्डन कलर. आप फिंगर से भी लगा सकते हो वंस इट ड्राइज. ओके, एंड ऐसे ब्रश से भी लगा सकते हो, वॉट एवर दैट यू आर कंफर्टेबल. नाउ द गोल्डन वन. Just wipe your brush nicely. There should be no water. And now the top part with golden color. Okay, and the bottom part also with golden color. So I'm just moving my brush at the base also. तो ये कलर डिज़ाइन you can decide, but like I have given you the idea कि आप एक अपना ओल्ड नेल पॉलिश के बॉटल को कैसे एक इंसेंस स्टिक होल्डर में टर्न कर सकते हो. एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी एंड अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर दिस फेस्टिव सीजन. ओके, अभी मैं आपको इसको पिकअप करके दिखाती हूँ हाउ इट इज लुकिंग. सो जस्ट हैव अ लुक. Can you see, guys? So this is the look that I was talking about. You guys can see
वो कैसे कलर एकदम प्रिटी लग रहा है. एंड दिस वे अवर इंसेंस स्टिक होल्डर इज रेडी. Now let it dry and I will post the final picture on the Insta. Okay, till that time let's see a close up of it. दिख रहा है? ये सब आपका एकदम अच्छे से होगा when you will do coloring at the dry one. ठीक है? So and you will make it and gift it to your loved ones. I really enjoyed it क्योंकि क्ले से काम करना मुझे बहुत पसंद है और जो आउटपुट वो देता है वो एकदम क्या बोलते हैं, अपने हाथों से जो बनाया होता है ना उसका फीलिंग ही अलग होता है. सो दैट्स हाउ इट इज. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड हैव अ नाइस फैंटास्टिक फेस्टिवल. एंजॉय इट. And do let me know if you create it. Do tag me on my Instagram stories and I'll be happy to share your creations. Bye bye guys. Good night.